Hello, all the students. Welcome to Icon Careers YouTube channel once again. And today we are going to take 5 more questions based on vocab. And today, the questions which we are going to discuss will be from a particular pattern, and that is one word substitute, where a small sentence will be given to us, and we need to replace that sentence with one word. And the beauty of today's questions, I have not taken any options. I'll just give a sentence. I'll tell you which is the starting letter of that word, and you people have to guess. मैं जानता हूँ CUET, IP मैथ और बाकी सब UG एडमिशन टेस्ट में options will be there. But anyway, students, I wanted to see how much you people are able to relate vocab with the sentences given. I wanted to see कि हम लोग कुछ हिंट के बेसिस पर कुछ गेस कर पाते हैं या नहीं. स्टूडेंट्स vocab को लेकर इस चैनल पर एक पूरी सीरीज चल रही है, जीके को लेकर चल रही है, आईपी मैथ के DILR के सेट सरपत सर डिस्कस कर रहे हैं, एंड Rajendra sir is taking classes on quant as well. So please ensure that CUET, IP Math या फिर after 12 किसी भी important exam को देना हो, so yes, make this channel your friend and do subscribe this channel, and please spread awareness about the channel. Tell your juniors, tell your friends as well. So students, हम लोग लेते हैं पहला question, and before that you see fantastic results of Icon Careers. अभी रिसेंटली कैट का रिजल्ट आया, द हाईएस्ट वाज 99.05 परसेंटाइल with a good number of other students who have scored around 95 percentile. And then students CUET, IP Math, हर साल you name any college and Iconites are studying there. चलिए, this becomes the very first question. Yes, and सभी students, please ensure that the number is there on the screen. If you really want कि सर मैं सीरियसली प्रिपेयर करना चाहता हूँ फॉर CUET, IP Math और एनी आफ्टर 12 UG एग्जाम 2026 या 27, you people can WhatsApp on this number or you can directly call also to get all the details. www.iconcareers.com is the website. You can go on that and explore the various courses available. Okay, now students, coming on the first question. The practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as one's own. और स्टूडेंट्स जो वर्ड है वो पी से स्टार्ट होगा. इसका बड़ा सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि जब हम किसी के लिटरेरी वर्क को चुराते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बहुत मेहनत करके कोई फॉर्मूला बनाया और किसी और ने उसे चुरा लिया, किसी ने कोई किताब लिखी और कोई और उसे चुरा लेता है, किसी ने कोई अच्छी स्टोरी लाइन लिखी और कोई और उसे चुरा लेता है. So students, the question is asking about that theft. So theft of literary work is known as what? So the practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as one's own. So theft is a बहुत अच्छा synonym, and especially students, this becomes a very particular word जो एक particular context में use होता है. Yes, anyone? कई बार न्यूज़पेपर्स में आता रहता है. वैसे स्टूडेंट्स एक बड़ा सिंपल सा वर्ड है पायरेसी. पायरेसी सुना है? पायरेसी का मतलब क्या होता है? चोरी. हालांकि स्टूडेंट यहाँ पर जो वर्ड दूंगा मैं और अलग दूंगा, एक और बहुत अच्छा सा वर्ड है, and that I'll be giving to you. But anyway, सबसे पहले अपन लिखते हैं पायरेसी. वैसे तो पी से स्टार्ट होता है, तो इवन दिस कैन बिकम द आंसर. इसी का एक और सिनोनिम हो सकता है स्टूडेंट्स, एंड दैट इज इनफ्रिंजमेंट. किसी के राइट्स को इन्फ्रिंज करना, वायलेट करना, एनक्रॉच करना, ओके, इन्फिल्ट्रेट करना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स पॉसिबल है. स्टूडेंट्स, इन्फ्रिंजमेंट, पायरेसी, these can be some of the synonyms of this word, and this word is plagiarism. Yes, so the word is plagiarism. So what is the meaning of plagiarism? किसी और के वर्क को चुरा लेना, तो इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं प्लेजियरिज्म. ध्यान रखना, अगर हम किसी के मटेरियल चीजों को चुराते हैं, दैट इज नॉट प्लेजियरिज्म. पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स किसी के वर्क को, जैसे हम लोग देखते हैं कि इंडिया में मैक्सिमम कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स में पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो इवन दैट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ प्लेजियरिज्म. कई बार स्टूडेंट्स में मजाक में कहता भी हूँ कि बिल गेट्स अगर इंडिया में होते तो आई गेस वो बैंकरप्ट होते, दिवालिया होते. पॉसिबली वो एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और हम सभी लोग उसे पायरेट करके अपने सिस्टम में यूज करते हैं. बट एनीवेज इन अमेरिका तो वहां पर
license version lena is compulsory and the laws are very strict there. But in India, we generally see that plagiarism is so common in India, and because law is not very much strict and courts में टाइम बहुत लग जाता है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इंडिया में रिसर्च वर्क भी थोड़ा सा लिमिटेड होता है, क्योंकि कोई भी पर्सन उसी देश में रिसर्च करना चाहेगा जहाँ पर खूब मेहनत करने के बाद जब वो कुछ बना लेता है तो एटलीस्ट ही शुड हैव द राइट टू अर्न फ्रॉम दैट. और इंडिया में हम जनरली देखते हैं प्लेजरिज्म को लेकर जो कानून है वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, अगर है भी तो उसे एग्जीक्यूट करवाने में बहुत टाइम लग जाता है. तो एनीवे, डोंट फॉरगेट व्हाट इज प्लेजरिज्म. तो प्लेजरिज्म, इन्फ्रिंजमेंट, पायरेसी, these are some of the words. चलिए, coming on question number 2. A sentimental longing or wishful affection for a period in the past. Students, a sentimental longing, इसका मतलब है पास्ट में किसी टाइम से आपके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए. जब स्टूडेंट्स आप अपने घर से पढ़ने के लिए जाओगे, घर से दूर, तब घर बहुत याद आएगा, तब पेरेंट्स याद आएंगे, मम्मी के हाथों की गरम गरम रोटियां याद आएगी. अभी तो क्या है ना, हम लोग अपने घर में रहते हैं, तो हमें स्टूडेंट्स वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, हमें लगता है ठीक है ना सब चीज़ें, बट द मोमेंट हम डिस्टेंस में जाएंगे तब पुराने दोस्त याद आएंगे. तो जब स्टूडेंट्स हम पुरानी चीज़ों से कनेक्ट होते हैं इमोशनली, तो व्हाट इज दैट नोन एज, एंड द वर्ड हैज टू स्टार्ट विद एन. आई गेस दिस क्वेश्चन इज नॉट सो टफ. This word is very common, and I guess you people very well know this. Yes, what is that? So the word is nostalgia. Absolutely. The word is nostalgia. Nostalgia becomes a noun, and students, इसी का एक adjective बनता है, and that is nostalgic. So nostalgia and nostalgic. तो nostalgia का मतलब है, इसका एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड हो सकता है homesickness. Homesick. When a person is homesick, उसे घर की बहुत याद आती है, पुराने टाइम की बहुत याद आती है. दैट इज नोन एज नॉस्टैल्जिया. कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, एक बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन. एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पार्टी एंड सफरिंग. इसका मतलब है स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सच ए सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट ऑर्डर. हर चीज ब्यूटीफुल, हर चीज एकदम प्रॉपर. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट द सोसाइटी where there is almost people living in harmony, no inequality, zero crime. तो अब स्टूडेंट्स, अगर मैं ऐसी सोसाइटी के बारे में सोचूंगा तो दिस इज गोइंग टू बी इमेजिनरी स्टेट ऑफ माइंड. प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स ऐसा हो पाना इज नॉट पॉसिबल. तो ऐसी इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी को हम लोग क्या कहते हैं? यस, एक तरह से राम राज्य अंडरस्टैंड. तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एंड द वर्ड स्टार्ट्स विद यू. Yes, come on. और इसके बहुत अच्छे सिनोनिम्स भी है. This actually becomes an ideal society. और इसके बहुत अच्छे सिनोनिम्स है. But anyway, students, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपन वर्ड को देखें, and then you people have to figure out and find out a few more synonyms of this. vocab को डेवलप करने का एक बहुत अच्छा तरीका. Whenever you come across a new word, write down the meaning of that. और उसके साथ उसके 3-4 सिनोनिम्स भी गूगल करो. और इस तरह से स्टूडेंट्स ग्रुपिंग करो, फैमिली बनाना स्टार्ट करो. तो जब आप ग्रुपिंग करना स्टार्ट करते हैं तो कम टाइम में पीपल कैन डेवलप अ वेरी गुड vocab. So the correct answer here is utopia. Yes, the right answer is utopia. So what is the meaning of utopia? It's an ideal society where everything is in perfect order. अब स्टूडेंट्स, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, Which is the perfect opposite of utopia? Perfect opposite. यहाँ पर सब चीजें perfect disorder में. जैसे for example Ukraine. What is the present state of Ukraine right now? Perfect disorder. सब कुछ almost बर्बाद हो चुका है. So now tell me students, ऐसे situation के लिए अपन कौन सा word use करते हैं? And this becomes the exact opposite of utopia. So that word, even this starts with D. The word starts with D, and the word is dystopia. Yes, यूटोपिया एंड डिस्टोपिया. राइट. तो ये दो बहुत अच्छे वर्ड्स हैं और मैं चाहूंगा इन दोनों के कम से कम 3 सिनोनिम्स जो पीपल हैव टू फाइंड आउट एंड नोट देम. चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 4.
someone in love with himself. Yes. एक तरह से स्टूडेंट्स इसका एक रिलेटेड वर्ड हो सकता है मेगालोमैनिया. मेगालोमैनिया, मैनिया का मतलब है क्रेजीनेस. तो व्हेन अ पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद हिमसेल्फ, मतलब खुद को लेकर ही क्रेजी होना, so this becomes an example of megalomania. Okay, so what is megalomania? Craziness, understand, for oneself. This man is full of arrogance, घमंडी, मेरे जैसा कौन. तो इसका एक और सिनोनिम हो सकता है स्टूडेंट्स, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक. ओके, ईगोमैनिया भी कह सकते हैं और ईगोसेंट्रिक भी कह सकते हैं. अब स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन है, द वर्ड स्टार्ट्स विद एन, समवन इन लव विद हिमसेल्फ, एन से स्टार्ट होना है. व्हिच इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज नार्सिसिस्ट. नार्सिसिस्ट, यस, दिस बिकम्स द करेक्ट आंसर. तो नार्सिसिस्ट का मतलब होता है someone who is obsessed with himself, is more concerned about himself, is more selfish, he loves himself more than any other person in the world. And this man is selfish, this man is arrogant. इसको लगता है बस सेल्फ सेंटर्ड, हर चीज में खुद के बारे में सोचेगा. ओके, तो ऐसे पर्सन को अपन कहते हैं नार्सिसिस्ट. ओके, डू अंडरस्टैंड. तो हमने 4 वर्ड्स अभी तक डिस्कस किए. सबसे पहला प्लेजियरिज्म, उसके बाद हमने यूटोपिया भी डिस्कस किया, एंड हमने डिस्कस किया था एक और क्वेश्चन, कौन सा था? जस्ट 1 सेकेंड. यूटोपिया, यस, नॉस्टैल्जिया, एंड द फोर्थ वर्ड इज नार्सिसिस्ट. अब स्टूडेंट्स द फिफ्थ वन, अ पर्सन हु इज मेंटली इल, एंड द वर्ड हैज टू स्टार्ट विद एल. एल, बताओ क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? वैसे जो मेंटली इल होता है, ऐसे पर्सन को अपन क्या कह सकते हैं? मैथ, क्रेजी, बड़ा सिंपल सा वर्ड. एक और वर्ड अपन ले सकते हैं, इनसेन. इनसेन, पागल, इनसेन. ओके, एंड और क्या पॉसिबल है? एंड दीज काइंड ऑफ पीपल, इन्हें जहां पर रखा जाता है, जिसको अपन हिंदी में पागल खाना कहते हैं, तो दैट इज नोन एज मेंटल असाइलम. असाइलम इज द प्लेस वेयर दीज पीपल आर केप्ट. असाइलम. एंड स्टूडेंट्स, एल से जो वर्ड स्टार्ट होगा, दैट इज लूनाटिक. The word is lunatic. तो lunatic का मतलब भी mentally ill होना. Okay? चलिए, so finally students, this was the end of this small video. तो 5 बहुत अच्छे words मैंने बताए, and do understand ये सारे words बहुत ही selective हैं, and these are the most common words which keep appearing in the various exam. तो students इन सब एग्जाम्स को अगर क्लियर करना है तो become the part of our courses. And at least ensure that कि इस चैनल पर जितने वीडियोस आए, I do understand, और मैं जानता हूँ ये सब टिप ऑफ द आइसबर्ग है. अभी तो स्टूडेंट्स, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ तो बहुत डेप्थ में बहुत सारी चीजें हम कवर करते हैं. But at least whatever we are posting on this channel, stay tuned with us and do observe, do watch each and every video. So thank you so much.